بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر لسنرز، امید ہے آپ کو ناول امر بیل پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی پسندیدگی کے اظہار کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن دبا کر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے ناول امر بیل کی آخری قسط۔ دوسری طرف صالحہ کی آواز سنائی دی، آئی ایم سوری کس لیے؟ وہ صالحہ کی بات پر کچھ حیران ہوئی۔ اس کی نظر اب بھی ایمبولینس کے پچھلے کھلے دروازے پر تھی جو اب پورا کھل چکا تھا۔ عمر جہانگیر کی ڈیتھ کے لیے دوسری طرف سے صالحہ کی آواز سنائی دی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کی نظر ایمبولینس سے نکلتے اسٹریچر پر تھی جس میں سفید چادر پہ لپٹی ڈیڈ باڈی تھی جس پر جگہ جگہ خون نظر آ رہا تھا۔ فوٹوگرافر کے فلیش اسٹریچر کے ساتھ چلتا عباس، اس کے باقی کزنز۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، دوسرا، تیسرا، اور پھر اس نے خود کو بھاگتے پایا۔ وہ ہجوم کو کاٹتے ہوئے آگے ہی آگے ایک پولیس والے نے اسے روکنا چاہا۔ اس نے اسے دھکا دیا، اس کے ایک کزن نے اسے آتے دیکھا اور پھر کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بھاگتی ہوئی اسٹریچر کے قریب آئی۔ عباس نے اسے آتے دیکھا تو اسٹریچر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور اس کے نزدیک تیزی سے آیا، اس کے گرد اپنے بازو پھیلاتے ہوئے اسے ایک طرف کیا۔ اسٹریچر کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اس کے اتنے نزدیک سے گزرا کہ وہ اسے ہاتھ بڑھا کے چھو سکتی تھی۔ سفید چادر پر جس جگہ سب سے زیادہ خون تھا وہ اس کا سر اور چہرہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ بڑھا پائی۔ وہ یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس اسٹریچر پر، اس سفید چادر پر خون میں لپٹا وجود عمر کا ہے، عمر جہانگیر کا۔ اس کی نظروں نے آپریشن تھیٹر تک جاتے جاتے اسٹریچر کا تعاقب کیا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر پہلی بار عباس کو دیکھا۔ عمر، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر آواز نہیں نکلی، بس ہونٹوں نے ذرا سی جنبش کی تھی۔ عباس نے شکست خوردہ سر ہلایا۔ وہ بے یقینی سے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایک فوٹوگرافر نے دونوں کی تصویر بنائی۔ فلیش کی چمک ہوتے ہوئے اس نے عباس کو غضبناک ہوتے دیکھا۔ اس باسٹرڈ سے کیمرہ لے کر دھکے دے کر یہاں سے نکالو، وہ اب کسی سے کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے چند پولیس اہلکاروں کو اس فوٹوگرافر کی طرف بڑھتے دیکھا۔ عباس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ عمر نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ معاف ذہن کے ساتھ اس نے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے عباس کے کندھے کو اپنے بازو سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ عمر کو اس کے موبائل پر رنگ کرنا چاہتی تھی۔ اسے یاد آیا اس کے پاس نہ اس کا بیگ تھا، نہ فون، گاڑی کی چابی تک نہ تھی۔ علیزہ، اس کمرے میں چلی آؤ، تانیہ وہاں ہے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ عباس اسے ایک طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے موبائل دیں، مجھے بات کرنی ہے۔ وہ اب کسی دوسرے کے رڈار میں تھی۔ ان کا ایک اور کزن خضر علی اب وہاں تھا اور اب عباس کچھ کہہ رہا تھا۔ علیزہ کے لیے ان کی باتیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے اب علیزہ ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہاں ثانیہ تھی اور اس کی فیملی کے چند اور عورتیں تھیں۔ پلیز مجھے فون دیں، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کس کو کال کرنی ہے؟ عباس نے پوچھا۔ عمر کو، اسے سنبھالو، ٹیک کیئر آف ہر۔ عباس نے ثانیہ کو اشارہ کیا۔ ثانیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جانے کی کوشش کی۔ علیزہ نے درستی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں آپ سے فون مانگ رہی ہوں اور آپ مجھے اپنا موبائل نہیں دے رہے، اب کی بار علیزہ نے بلند آواز سے کہا۔ عباس نے ایک نظر باہر کھڑے ہجوم پر ڈالی۔ خضر، تم چلو، میں آتا ہوں، اور پھر آہستگی سے دروازے کو بند کر دیا۔ مجھے فون دے، میں اسے فون کرنا چاہتی ہوں، علیزہ ایک بار پھر سے گرائی۔ جسے تم فون کرنا چاہتی ہو وہ اب نہیں ہے علیزہ، پلیز تم۔ علیزہ نے اس کی بات کاٹی۔ میری بات کروا دیں ان سے پلیز، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، عمر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب کی بار اس کی آواز میں بے چارگی تھی۔ اس کے گرد اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ عمر کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عباس بھائی، وہ بے ربط جملے بول رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، کیا کہنا چاہتی تھی وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ عباس کے چہرے کی تھکن اور شکستگی اس کے خوف میں اضافہ کر رہی تھی، مگر خوف؟ کیا خوف تھا اسے؟ بے یقینی؟ کیسی بے یقینی؟
अब्बास ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो एक टेबल की तरफ बढ़ गया। अब की बार अलीज़ा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में सील्ड पैकेट था जिसे वो अब खोल रहा था और उसमें मौजूद चीज़ें आहिस्तगी से टेबल पर रख रहा था। वो उमर का मोबाइल, ग्लासेस, सिगरेट केस, लाइटर, घड़ी, वॉलेट और चंद दूसरी चीज़ें थीं। वो कुछ चीज़ों को पहचानती थी, कुछ को नहीं। कुछ भी कहे सुने बगैर वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेज़ के पास आकर खड़ी हो गई। मेज़ पर पड़ी कुछ चीज़ें खून आलूद थी। वो उन्हें पकड़ने की हिम्मत ना कर सकी, बस अपने हाथ मेज़ पर रखे यकटुक उन्हें देखने लगी। वो सब चीज़ें कभी उस शख्स की ज़िंदगी का एक हिस्सा थीं, जिसे वो अपने वजूद का एक हिस्सा समझती थी। उन सब चीज़ों पर उस शख्स के हाथों का लम्स था जिसे कभी उसने सबसे ज़्यादा चाहा था। उमर जहांगीर अब ख़त्म हो चुका था। सामने पड़ा मोबाइल अब कभी उमर के साथ उसका राब्ता नहीं करवा सकता था। उसने वहीं बैठकर टेबल पर अपना सर टिका लिया और मुट्ठियां भींच कर रोती गई। मैंने कभी उससे ये नहीं कहा कि वो इस तरह चला जाए। वो बेइख्तियार रोती चली गई। बच्चों की तरह जुनूनी अंदाज में उस लम्हे उस पर पहली बार इंकशाफ हुआ था कि उसे उमर से कभी नफरत नहीं हुई थी। उसे उससे नफरत हो ही नहीं सकती थी। सिर्फ एक धोखा और फरेब था जो वो अपने आप को दे रही थी, सिर्फ उस ख्वाहिश और उम्मीद पर कि शायद कभी उसे उमर से नफरत हो जाए। कभी, शायद कभी। तुम क्रिस्टी के मरने पर इतना रोई हो तो मेरे मरने पर कितना रोओगी? उमर ने बड़ी संजीदगी से उससे पूछा। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? उसने बुरा मानकर कहा। पूछ रहा हूं अपनी मालूमात के लिए। उमर मुस्कुराया। अलीज़ा क्रिस्टी के मरने पर 4 दिन से वक्फे वक्फे से रो रही थी और वो 2 दिन फोन पर क्रिस्टी की वफात का सुनकर ताज़ियत के लिए इस्लामाबाद से आया था। वो इस कदर रंजीदा और वक्फे वक्फे से रोई थी कि उमर जो सिर्फ 1 दिन के लिए आया था उसकी हालत देखकर 4 दिन यहाँ रुका रहा। चौथे दिन जब वो ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने जा रही थी तो उसने उससे पूछा था, इस तरह की बातें ना करें। अलीज़ा को एक बार फिर क्रिस्टी याद आई। मुझे पता है आपको कुछ नहीं हो सकता। क्यों? उमर हैरान होकर उसे देखे गया। बस मुझे पता है। और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। तुम मेरे लिए रोना नहीं चाहती हो इसलिए ऐसे कह रही हो। अलीज़ा की आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे। ओके ओके सॉरी, मगर क्रिस्टी बहुत लकी है जिसके लिए तुम इतना रोई हो। वो सॉरी करते करते भी बाज नहीं आया। सानिया ने उसे कंधों से पकड़कर उसे सीधा करने की कोशिश की। अब्बास अब होंठ भेंचे उन सब चीज़ों को दोबारा पैकेट में डालने लगा। जस्ट रिलैक्स अलीज़ा, रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना? सानिया ने उसके कंधे को दबाते हुए कहा। मेरे रोने से तो आ जाता था। मुझे उसके पास जाना है, मैं उसके पास रहना चाहती हूँ। उसका पोस्टमार्टम हो रहा है अलीज़ा। मैं कुछ देर तक तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। अब्बास ने उसके कंधे को थपकते हुए कहा। वो बेबसी से रोती गई। बहुत सालों बाद वो ऐसे सबके सामने रो रही थी, आंसुओं को रोकने की इरादी और गैर इरादी कोशिश किए बगैर। तुम कभी मैच्योर नहीं हो सकती अलीज़ा, तुम कभी मैच्योर नहीं हो सकती। इस हालत में बैठे हुए उसे पहली बार उमर की हर बात का यकीन आ रहा था। वो ठीक कहता था। वो जज्बाती थी और इमेच्योर थी। वो उमर के किसी हिस्से में उन दोनों खामियों से निजात नहीं पा सकती थी। सिर्फ उमर था जो उसे जानता था और अच्छे से जानता था। अब्बास अब कमरे से बाहर जा रहा था। अब्बास के यूनिफॉर्म ने एक बार फिर उसे उमर की याद दिला दी। क्या कुछ न था जो उसे उसकी याद न दिलाता। वो घुटनों में सर देकर रोती गई। तो ये होती है जिंदगी और ये मोहब्बत। एक वक्त में एक ही चीज खत्म होती है, दोनों नहीं। और इस वक्त उसके दिल में उमर के लिए कोई शिकायत, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं था और अब जिंदगी में कभी हो भी नहीं सकता था। फायरिंग की थी किसी ने। गाड़ी में उसका एक गार्ड और ड्राइवर भी मारा गया। अब्बास को इस एक्सीडेंट की 10 मिनट पहले ही इत्तला मिल गई थी। वो बहुत अपसेट था। यहाँ से खुद हेलीकॉप्टर में गया था उसकी बॉडी लाने के लिए। मैं सोचती रही कि तुम लोगों को किस तरह ट्रेस आउट कर लूं, मगर नहीं कर सकी। अब्बास ने भी बहुत कोशिश की। सानिया धीमी आवाज में साथ वाली कुर्सी पर बैठी कह रही थी। अलीज़ा के लिए यह सब इत्तलात बेमायनी थी।
वो चंद दिनों में अमेरिका जाने वाला था, एक्स पाकिस्तान लीव पर, और ये सब कुछ हो गया। अलीज़ा ने यकदम सर उठाकर धुंधलाई हुई आंखों से उसको देखा। तुम्हें लगता है मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारी और जुनैद के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं वाकई दोबारा कभी तुम दोनों के दरमियान नहीं आऊंगा। मैं जुनैद से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। तुम कुछ पूछना चाहती हो? तानिया ने उससे मुखातिब किया। अलीज़ा ने नफी में सर हिला दिया। उसके गले में आंसुओं का फंदा सा लग गया था। तुम हार्डकोर क्रिमिनल हो, बस फर्क ये है कि तुमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जिस दिन ये यूनिफॉर्म उतर जाएगा उस दिन तुम भी उसी तरह मारे जाओगे जिस तरह तुम दूसरे लोगों को मारते हो। अलीज़ा ने शिकस्त खोर्दगी के आलम में सर झुका लिया। उसने जिंदगी में खुद को इससे ज्यादा शिकस्ता और काबिल रहम कभी महसूस नहीं किया था। वो कितनी तकलीफ से गुजरा होगा, कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ा होगा उसे। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। कौन कहता है किसी शख्स से एक बार मोहब्बत होने के बाद उससे नफरत हो सकती है? जो कहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। नहीं होती। खुद को फरेब देने के बावजूद हम जानते हैं रिप्लेसमेंट में सिर्फ मोहब्बत की साइकिल ऑफ रिप्लेसमेंट नहीं, कि हमारे वजूद में खून की गर्दिश की तरह बसने वाला नाम किसका होता है। हम कभी भी उसे अपने वजूद से निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकते। तह दर तह उसके ऊपर दूसरी मोहब्बतों का ढेर लगाए जाते हैं। कहते जाते हैं अब हम उससे मोहब्बत करते हैं, अब हम इससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा दूर होता जाता है वो ज़्यादा करीब आ जाता है, और वो हमारे दिल और दिमाग के उस हिस्से में पहुंच जाता है कि कभी उसको वहां से निकालना पड़े तो फिर उसके बाद हम नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल ही नहीं रहते। वो उसकी मोहब्बत में 18 साल की उम्र में गिरफ्तार हुई थी। वो वाहिद शख्स था जिससे वो हर बात कर लेती थी। वो बहुत सारी बातें भी जो कभी वो शहला और नानों से भी नहीं कर सकती थी। वो वाहिद शख्स था जो उसके नखरे बर्दाश्त करता था, नाज उठाता था। उसने उमर जहांगीर के अलावा किसी से इतनी जिद नहीं की थी, किसी को इतना तंग नहीं किया था। उसने उमर जहांगीर के अलावा किसी को बुरा भला भी नहीं कहा था, किसी से बदतमीजी भी नहीं की थी, किसी पर चीखी चिल्लाई भी नहीं थी। वो वाहिद शख्स था जो उसकी हर गलती अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार रहता था, जो उसे महफूज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और वो ये सब कुछ जानती थी। और अब जब वो अपनी जिंदगी का सफर खत्म करके दुनिया से जा चुका था तो वो अंधों की तरह हाथ फैलाए खड़ी रह गई थी। कोई दूसरा शख्स उसके लिए उमर जहांगीर नहीं बन सकता था। दोनों हाथ सर पर रखे वो बच्चों की तरह रो रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो 18 साल की उम्र में एक बार उमर के सामने पार्क में रोई थी, और फिर उसके बाद उसके सामने कई बार रोई थी। क्या कुछ था जो आज उसे याद नहीं आ रहा था। उसे पहली बार लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, कहीं भी कुछ भी बाकी नहीं रहा था। क्या था अगर वो उससे मोहब्बत नहीं करता था? फिर भी उसका होना ही कितना काफी था उसके लिए। कुछ फासले पर मौजूद एक कमरे में उमर जहांगीर के जिस्म को काटने वाले सारे निश्तर उसे अपने वजूद पर चलते महसूस हो रहे थे। वो उसे अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफ देह चीजों से बचाया करता था, और वहां बैठे अलीज़ा सिकंदर की ख्वाहिश इतनी थी कि वो उस सब के बदले उमर जहांगीर को सिर्फ एक चीज से बचा ले, मौत से। रिपोर्टर्स ने सूबाई वजीर को घेरा हुआ था जो कुछ देर पहले हॉस्पिटल पहुंचे थे। आपका क्या ख्याल है सर, इस कत्ल के पीछे किसका हाथ हो सकता है? एक रिपोर्टर ने उससे सवाल किया। देखें, इस बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया है। उम्मीद है जल्द ही इस अफसोसनाक हादसे के मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने अपने पास खड़े आईजी पंजाब को देखते हुए कहा, जो मुद्दबाना अंदाज में सर हिलाने लगे। क्या पुलिस को इस मामले में कोई लीड मिली है? एक और सवाल हुआ। इस बारे में आईजी साहब आपको ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, मगर मैं नहीं समझता कि वो अभी फौरी तौर पर आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज दे सकते हैं। फिर भी बेहतर है ये सवाल आप उन्हीं से करें। उन्होंने आईजी साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा। उमर जहांगीर हमारे एक बहुत काबिल ऑफिसर थे। आईजी ने इशारा पाते ही अपने बयान का आगाज किया। उनके साथ होने वाला हादसा दरअसल हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। जैसा कि आपको मिनिस्टर साहब ने बताया,
पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया है। हम हालात का जायजा लेने और शवाहद की मदद से 48 घंटों के अंदर मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस कोशिश में कामयाब भी हो जाएंगे। एक रिपोर्टर ने आईजी की बात को काटा। सर, ये जो आप 48 घंटे की बात कर रहे हैं, आज तक कौन सी पुलिस 48 घंटों में मुजरिम पकड़ने में कामयाब हुई है? आईजी के माथे के बल कुछ गहरे हो गए। अगर पुलिस 48 घंटों में मुजरिम पकड़ने में कामयाब होती तो आज हम और आप यहाँ खड़े होकर ये गुफ्तगू ना कर रहे होते। पिछले 1 साल में जब से आप आईजी पंजाब बने हैं, 7 मुख्तलिफ रैंक्स के ऑफिसर को मारा गया है और पुलिस इस सिलसिले को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। इस बार आईजी ने कदरे तुर्शी से उस गैर मुल्की ब्रॉडकास्टिंग के इदारे से वाबस्ता तेज तर्रार किस्म के पाकिस्तानी सहाफ़ी की बात को काट दिया। पुलिस ने एक के अलावा तमाम वाक़यात में मुलविस मुजरिमों को पकड़ लिया है। अगर आप वाकई मुजरिमों को गिरफ्तार कर चुके होते तो आज आपका एक और ऑफिसर इस तरह मारा जाता। उस रिपोर्टर ने भी उतनी ही तुंदी और तेजी से कहा। सूबाई वजीर ने बर वक्त मुदाखलत की। देखें, ये कुछ ज्यादा ही सख्त किस्म का तबसरा है जो आप कर रहे हैं। आईजी पंजाब ने जब से अपनी टेनर शुरू की है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो गई है। सर, आप नहीं समझते कि इतने सीनियर ऑफिसर के कत्ल के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सूरत हाल की तारीफ कुछ मजाक सा लगता है। सूबाई वजीर चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सके। वो अगर आप पूरे मुल्क में देखें तो मैं इस लिहाज से सूरत हाल में बेहतरी की बात कर रहा हूँ। सूबाई वजीर बेख्तियार बौखला गए। बाकी तीनों सूबों में कभी भी इस तरह धड़ाधड़ ऑफिसर्स कत्ल नहीं हुए, खासतौर पर 1 साल में। आखिर पंजाब में ही ऐसा क्यों हो रहा है? सूबाई वजीर के साथ साथ आईजी पंजाब का दिल चाहा कि वो इस रिपोर्टर की बत्तीसी के साथ साथ उसकी जबान निकाल कर भी उसके हाथ में रख दें, मगर हार्वर्ड से पढ़ा हुआ वो सहाफ़ी एक वफाकी वजीर का बेटा था। वो उसकी बकवास और सवाल सुनने पर मजबूर थे। आप पंजाब की आबादी भी तो देखें, वजीर के मुंह से बेख्तियार निकला। आबादी से ऑफिसर्स के कत्ल का क्या ताल्लुक है? मैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से आबादी का जिक्र कर रहा हूँ। वजीर साहब ने कदरे तहम्मुल मिजाजी का सबूत दिया। बाकी सूबों में कम आबादी की वजह से इतने वसाइल का सामना पुलिस को नहीं करना पड़ता जितना पंजाब में करना पड़ता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम हालात को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपका एक एसपी जो किसी शहर में बादशाह के बराबर होता है, वो दिन दहाड़े अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ शहर के बीच में कत्ल हो जाए तो आम लोग अपनी हिफाजत के लिए किसकी तरफ देखें? उस रिपोर्टर ने च्युइंगम चबाते हुए कहा। पुलिस अगर अपने एक ऑफिसर को नहीं बचा सकती तो वो एक आम आदमी को कितनी सिक्योरिटी दे सकती है? देखें, जिस शहर में वो तैनात थे वो पंजाब के हसास इलाकों में शुमार किया जाता है और उमर जहांगीर के बारे में महकमे को कुछ ऐसी खबरें मिली थीं कि उनकी जान को खतरा था। उन्हें धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स भी की जाती रही थी। फिर हम इस पूरे मामले में दहशत गर्दी के अंसर को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऐसे हादसात का सबब बनते हैं, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हादसात दोबारा ना हों। थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर्स की एक हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। कल वजीर दाखिला आ रहे हैं, वो भी एक मीटिंग कर रहे हैं। इस बार आईजी ने मिनिस्टर से इजाज़त लेते हुए कहा और रिपोर्टर्स ने मजीद कोई सवाल नहीं किया तो आईजी की जान में जान आई। सर, आपने दहशत गर्दी का जिक्र किया है, क्या आपका इशारा मजहबी दहशत गर्दी की तरफ है? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए ये किसी गैर मुल्की एजेंसी का काम है। एक दूसरे रिपोर्टर ने नुक्ता उठाया। मैंने आपको बताया ना, इस मरहले पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही हम इस मामले में कुछ प्रोग्रेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों को पुलिस की तमाम कार्रवाई के बारे में आगाह कर देंगे, आईजी ने कहा। उमर जहांगीर काफ़ी मुतनाज़िया शख्सियत थे। पिछले कुछ सालों में कई हवालों से वो अखबारात में आते रहे। कहीं ये किसी ज़ाती दुश्मनी का नतीजा तो नहीं? एक दूसरे रिपोर्टर ने कहा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आईजी ने इस बार उकताए हुए लहजे में कहा। सर, क्या इस कत्ल से आइंदा आने वाली पुलिस रिफॉर्म्स पर कुछ असर पड़ेगा? इस बार एक दूसरे रिपोर्टर ने पूछा। कैसा असर? क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस के इख्तियारात में कमी और रूल में तब्दीली करके आप पुलिस ऑफिसर को मजीद वर्नरेबल कर देंगे? इसके बरक्स मैं समझता हूँ कि इस नए सिस्टम से पुलिस और अवाम के दरमियान एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप पैदा होगा और इस तरह के हादसात का सद्देबाब भी हो सकेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी और बेहतर होगी। सूबाई वजीर ने अपने पसंदीदा जुमले की एक बार फिर गर्दान की।
یعنی ایس پی جب ڈی پی اور ڈی سی جب ڈی سی او کہلانے لگیں گے تو پھر وہ اس طرح کھلے عام سڑکوں پر نہیں مارے جائیں گے۔ شیراز صاحب، آج آپ کو ہوا کیا ہے؟ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں آپ بار بار؟ بلاخر صوبائی وزیر چڑ کر بول ہی اٹھے۔ شیراز صاحب نے سول سروس کے ایگزام میں دوسری پوزیشن لی ہے اور چند ہفتوں میں اکیڈمی جوائن کر رہے ہیں، ایک دوسرے رپورٹر نے لقمہ دیا۔ پھر تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ پولیس سروس میں ہی آئیں گے تاکہ وہ بہتری جو ہم نہیں لا سکے آپ لائیں اور ہم بھی آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس بار آئی جی نے اپنے چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ویسے بھی پولیس کے محکمے کو ضرورت ہے آپ جیسے آفیسرز کی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ صوبائی وزیر نے آئی جی کے جواب میں کچھ اضافہ کیا اور اگلے کسی سوال سے پہلے اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا۔ میں الو کا پٹھا ہوں، میں جاؤں گا پولیس سروس میں، شیراز صدیقی بڑبڑایا۔ ہر چیز بہت تیز رفتاری سے ہوئی۔ دوسرے دن شام کے قریب عمر جہانگیر کی تدفین کر دی گئی۔ جہانگیر معاذ دوپہر کے قریب پاکستان پہنچ گئے تھے۔ زارا مسعود پاکستان نہیں آئی، وہ ایک آپریشن کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں اور ان کے شوہر نے بیماری اور آپریشن کے مد نظر انہیں اطلاع دینے سے معذرت کر لی تھی۔ معاذ حیدر جیسے خاندان کے لیے عمر جہانگیر کا قتل ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ تصور کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا کہ ان کے اپنے خاندان کے کسی فرد کو بھی اس طرح دن دہاڑے قتل کیا جا سکتا ہے۔ عمر کے قاتلوں کے بارے میں فوری طور پر کچھ پتہ نہیں چلا، وہ کون تھے، انہوں نے عمر کو کیوں قتل کیا، اور ایسے بہت سے سوالات کا کوئی جواب کہیں نہیں تھا۔ شاید آنے والا وقت بھی ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ معاذ حیدر کا پورا خاندان اگلے کئی دن تک ان کے گھر پر جمع ہوتا رہا۔ موضوع گفتگو ہر ایک کے لیے عمر ہی رہا۔ علیزہ ان سب کو عمر کے بارے میں باتیں کرتے سنتی رہی۔ وہ ڈسکس کرتے تھے کس طرح انہوں نے عمر کو بہت سی چیزوں کے بارے میں سمجھانے اور آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، کس طرح عمر ان تمام باتوں کو اگنور کرتا رہا، کس طرح اس کی لاپرواہی اسے مختلف مواقع پر نقصان پہنچاتی رہی۔ اور ہر بحث کا نتیجہ ایک ہی نکلا کہ عمر کے ساتھ ہونے والے اس حادثے میں عمر کی اپنی غلطیاں بھی معاون تھیں۔ اسے بے ضرر بن کر سسٹم کا حصہ بننا نہیں آیا تھا، وہ ایک پاپولر آفیسر بھی نہیں تھا۔ علیزہ جانتی تھی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے عمر سے ہمدردی نہیں تھی، جو عمر کے ساتھ ہونے والے واقعے پر رنجیدہ حقائق کی بات کرتے تھے، کیونکہ وہ سب پریکٹیکل تھے، فگرز اور فیکٹس نہیں تھا۔ مگر اس سب کے باوجود وہ حقیقت پسند جو کسی بھی چیز کو رشتوں اور جذباتی تعلق کے حوالے سے نہیں لے سکتے تھے، وہ سب عمر کو اتنے بے تاثر اور غیر جذباتی انداز میں ڈسکس کر سکتے تھے، مگر علیزہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کوئی ایماندار آفیسر نہیں تھا، وہ بہت سے غلط کاموں میں ملوث رہا تھا، بہت سے لوگوں کو اس نے بہت تکلیف بھی دی تھی اور بہت سے لوگوں کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث بنا رہا تھا۔ کوئی بھی اس کی موت کو جو بویا وہ کاٹا قرار دے سکتا تھا، کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ عمر جہانگیر اسی سلوک کا مستحق تھا، مگر وہ ایسا نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کی زندگی میں وہ اس پر بے تحاشا تنقید کرنے لگی تھی، اسے عمر جہانگیر کے کاموں پر اعتراض ہونے لگا تھا، مگر اس کی موت کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اچھا آفیسر بھی نہیں تھا دوسروں کے لیے، مگر اس کے لیے وہ ہمیشہ اچھا ہی رہا تھا، اور وہ عمر جہانگیر کو دوسروں کی عینک سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ دوسروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بنیاد پر اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ عمر کی موت کے ایک ہفتے کے بعد اس نے اخبار سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب اس سسٹم کے بارے میں کبھی کچھ نہیں لکھ سکے گی۔ وہ کس منہ سے ان تمام چیزوں کے لیے دوسروں پر تنقید کر سکتی تھی جن کے لیے اس نے عمر جہانگیر کو معاف کر دیا تھا، جن کے لیے وہ عمر جہانگیر کو بخشنے پر تیار تھی، اپنی فیملی کے اس فرد کو جس کے ساتھ اس کا جذباتی تعلق تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جہانگیر معاذ عمر کی موت سے کس حد تک متاثر ہوئے تھے۔ اس کے خاندان کے دوسرے مردوں کی طرح وہ بھی اپنے احساسات چھپانے اور چہرہ بے تاثر رکھنے میں ماہر تھے۔ یہ وہ خصوصیت تھی جو معاذ حیدر جیسے بڑے خاندانوں کے لوگوں کے ساتھ ساری عمر چلتی رہی۔ علیزہ نے نمرہ کی موت پر جہانگیر معاذ کو پریشان دیکھا تھا، مگر عمر کی موت پر وہ بے حد خاموش تھے۔ ان کے اور عمر کے درمیان کبھی بھی خوشگوار تعلقات نہیں رہے۔ وہ جانتی تھی پچھلے چند سالوں سے ان دونوں کے درمیان بول چال تک بند تھی، مگر خود وہ بھی پچھلے 1.5 سال سے عمر کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی تھی۔
اس کے باوجود اس کی موت نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جہانگیر معاذ کے اندر کتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ آخر وہ ان کا بڑا بیٹا تھا۔ عمر کے حادثے کی وجہ سے اس کی شادی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ سمینا نے پاکستان میں اپنا قیام بڑھا دیا تھا، مگر انہوں نے جنید کی فیملی یا جنید کی فیملی نے ان سے اس معاملے میں فی الحال کوئی بات نہیں کی تھی۔ عمر کے 10ویں کے بعد آہستہ آہستہ سب نے واپس جانا شروع کر دیا۔ ہر ایک اپنی اپنی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ رہا تھا۔ جہانگیر معاذ بھی 12ویں دن اپنی فیملی کے ساتھ واپس امریکہ چلے گئے تھے۔ آپ چائے پئیں گے؟ علیزہ نے جنید سے پوچھا۔ ان دونوں کے درمیان تقریباً 2 ہفتے کے بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر تک ہر جگہ موجود رہا تھا اور 10ویں تک ہر روز اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر آتا رہا تھا، مگر اس کے اور علیزہ کے درمیان براہ راست کوئی بات نہیں ہوئی۔ حادثے کے بعد آج پہلی بار وہ علیزہ سے مل رہا تھا اور اس کی فیملی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اور جس وقت آیا تھا اس وقت ثانیہ واپس گھر جا رہی تھی اور علیزہ اس کے ساتھ پورچ میں کھڑی تھی جب گیٹ سے جنید کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی ثانیہ کی گاڑی کے پاس لا کر کھڑی کر دی۔ کچھ دیر اس کے اور ثانیہ کے درمیان رسمی بات چیت ہوئی، پھر ثانیہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ آئیں اندر آ جائیں، یہ پہلا جملہ تھا جو بہت دنوں کے بعد ان دونوں کے درمیان بولا گیا تھا۔ نہیں، باہر لون میں بیٹھتے ہیں، جنید نے کہا اور وہ خاموشی سے لون کی طرف بڑھ گئی۔ اور اب وہ پچھلے 10 منٹ سے لون کی کرسیوں پر چپ چاپ بیٹھے تھے۔ علیزہ نے اس گہری خاموشی کو توڑنے کے لیے اس سے پوچھا، آپ چائے پئیں گے؟ نہیں، میں یہاں آنے سے پہلے چائے پی کر آیا ہوں، جنید نے جواباً کہا اور پھر کچھ توقف کے بعد پوچھا، جوڈت نے فون کیا تھا تمہیں؟ جوڈت نے؟ نہیں، نانو سے اس کی 2 بار بات ہوئی ہے، علیزہ نے بتایا۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، نانو نے مجھے بتایا، مگر یہ ایک اتفاق ہی ہے کہ اس سے دونوں بار میری بات نہیں ہو سکی۔ وہ ہفتے کی رات کو پاکستان آ رہی ہے، جنید نے بتایا۔ علیزہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ یہاں ٹھہرنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی تھی جنید کا اشارہ کس طرف ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر رہنے کے لیے کہا ہے، مگر اس کی خواہش ہے یہاں ٹھہرنے کی۔ آپ ان سے یہاں آنے کے لیے کہہ دیں، مجھے اور نانو کو انہیں ریسیو کر کے خوشی ہوگی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی جوڈت پاکستان کیوں آ رہی تھی۔ انہوں نے آپ کو فلائٹ کی ٹائمنگز کے بارے میں بتایا ہے؟ اسے ایئرپورٹ سے میں ریسیو کر لوں گا، جنید نے کہا۔ علیزہ خاموش رہی۔ وہ یہاں ہماری شادی تک رکے گی، علیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی ان دونوں کے درمیان در آئی تھی۔ چند دنوں تک امی اور بابا تم لوگوں سے اس سلسلے میں بات کرنے آئیں گے، اس نے آہستہ سے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس سلسلے میں تم سے بات کروں تاکہ تم نانو کو اور اپنی ممی کو بتا سکو۔ علیزہ نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ میں چاہتا ہوں شادی سادگی سے ہو، میں زیادہ دھوم دھڑکا نہیں چاہتا، وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ اس نے جس دن جنید کو اپنے اور عمر کے بارے میں بتایا تھا، اس سے اگلے دن عمر کے ساتھ وہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اس نے جنید سے کہا تھا کہ وہ اسے یہ سب کچھ اس لیے بتا رہی ہے کہ حقائق سے آگاہ ہو کر وہ آسانی سے یہ فیصلہ کر سکے کہ اسے بھی کبھی علیزہ سے شادی کرنی ہے یا نہیں۔ پچھلے 15 دنوں میں جنید سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جنید کی کیفیات اور تاثرات کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ جنید کے سامنے ایک بار پھر عمر کے لیے اس کے جذبات اور احساسات عیاں ہو گئے تھے۔ اس نے بڑے وثوق سے عمر کے قتل سے 1 دن پہلے ہوٹل میں بیٹھ کر جنید سے کہا تھا کہ وہ عمر سے محبت کرتی تھی مگر اب نہیں کرتی۔ اس کے اور عمر کے درمیان اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اب عمر کی اصلیت جان چکی ہے اور اس کی اصلیت جان لینے کے بعد وہ عمر جیسے دھوکہ باز اور خود غرض انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ جانتی تھی پچھلے 15 دن میں عمر کی موت پر اس کے رد عمل نے جنید پر یہ حقیقت آشکار کر دی ہوگی کہ وہ اب بھی عمر سے محبت کرتی ہے۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ یہ اندازہ نہ کر پاتا۔ وہ اپنے چہرے کو کبھی بے تاثر رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ خوشی اور غم ہر تاثر اس کے چہرے سے جھلکتا تھا اور زندگی میں پہلی بار اسے اپنے چہرے کی اس خوبی پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، کوئی غصہ نہیں آیا تھا۔ اس نے ان 15 دنوں میں ہر بار جنید کا سامنا ہونے پر کبھی یہ ظاہر ہونے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ عمر کی موت سے متاثر نہیں ہوئی۔
क्योंकि वो उसके साथ अपना जज्बाती ताल्लुक ख़त्म कर चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी और ज़ात के गिर्द चढ़ाए गए इन खोलों से तंग आ गई थी, जिन्हें संभालते संभालते वो पिछले कई सालों से हलकान थी। और शायद वो लाशौरी तौर पर जुनैद के सामने ये इतराफ़ भी कर लेना चाहती थी कि वो कभी उमर से नफ़रत नहीं कर सकती। उसकी मौत उसकी तमाम नाराज़गियों और गुस्से को ख़त्म कर गई थी, और इन 15 दिनों के बाद वाहिद चीज़ जिसका वो सामना करने के लिए तैयार नहीं थी और जिसकी वो तवक्को नहीं कर रही थी, वो जुनैद की तरफ से शादी के बारे में दोबारा बात थी। वो इस वक्त शादी के बारे में बिलवास्ता तरीके से बात करते हुए यकीनन ये जता रहा था कि वो सब कुछ जानने के बावजूद इस रिश्ते को कायम रखना चाहता है। क्यों? वो इस वक्त उसे एक सवाल के अलावा और कुछ पूछना नहीं चाहती थी। सब कुछ जानने के बाद भी आप क्यों इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं? उसने जुनैद के खामोश हो जाने के बाद सवाल किया। वो उसके अकब में इस्तादा दरख्तों पर बैठे परिंदों पर नजरें जमाए हुए था। अलीजा को यूं लगा जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी हो। उसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। इस बार जुनैद ने दरख्तों से नजर हटाकर उसे देखा। पता नहीं, उसने एक गहरा सांस लिया। शायद इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ, या फिर शायद इसलिए कि मैं उमर की फैमिली से अपना ताल्लुक ख़त्म नहीं करना चाहता। बहुत कुछ तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, जो बाकी रह सकता है मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बड़े हमवार लहजे में कह रहा था। या फिर शायद इसलिए कि ये उमर की ख्वाहिश थी। उसने जुनैद के चेहरे पर नज़रें जमा कर कहा। जुनैद ने उसकी बात की तरदीद की, ना एतराफ़। वो एक बार फिर उन दरख्तों पर बैठे परिंदों की तरफ मतवजा हो चुका था। मैंने पहली बार उमर से तुम्हारा जिक्र तब सुना जब वो सिविल सर्विस का इम्तिहान देने आया था। वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर ठहरा था। अलीजा ने जुनैद को बड़बड़ाते देखा। वो अभी भी उन्हीं परिंदों को देख रहा था। अलीजा को याद था वो उसकी नाराज़गी की वजह से घर छोड़कर किसी दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो गया था, मगर वो उस दोस्त के बारे में नहीं जानती थी। फिर कुछ दिनों बाद उसने कहा कि वो वापस ग्रैनी के पास जा रहा है। मैं नाराज़ हो गया। तब उसने मुझसे माजरत की और मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि किस तरह तुम उसके वहाँ आ जाने पर खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हो, और फिर तुम लोगों के दरमियान दोस्ती हो गई थी। मैंने उमर की इन बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। मैं समझता था वो इसलिए ज़्यादा हमदर्दी महसूस कर रहा है क्योंकि वो खुद भी एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। अलीजा उसे देखती रही। फिर उसकी बातों में अक्सर तुम्हारा जिक्र होने लगा। मैंने तब भी गौर नहीं किया। तुम्हारी और उसकी उम्र में बहुत फ़र्क था। तुम एक टीनेजर थी जबकि उमर बहुत मैच्योर था। मेरा ख्याल था वो तुम्हारे साथ एक ही घर में रह रहा है और फिर तुमसे हमदर्दी भी करता है, इसलिए गैर महसूस तौर पर तुम उसके करीब आने लगी हो। मैंने तब भी ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे लिए उसके दिल में किस तरह फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। जुनैद ने अब अलीजा को देखते हुए कहा। मैं तब भी यही समझता रहा कि उसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती जोडी के साथ ही है, और अगर कभी उसने शादी की तो वो उससे ही करेगा। वो दोनों हम उम्र थे और बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ थे। उन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही समझता। आपने ठीक समझा। अलीजा ने धीमी आवाज़ में पहली बार उसकी गुफ्तगू में मुदाखलत की। वो जोडित से ही मोहब्बत करता था। वो उसी से शादी करना चाहता था। मैं समझता था। जुनैद ने उसकी बात सुनकर भी अपनी बात जारी रखी। मैं समझता था मैं उमर के बहुत करीब हूँ, उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसे बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ऐसा नहीं था। जुनैद अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। ये सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। मैं या उसका कोई भी दोस्त उसके अंदर तक नहीं झांक सका। उसने हमें इसका मौका ही नहीं दिया। हम उसे सिर्फ इतना ही जान सके जितना वो चाहता था। वो ठीक कह रहा था। अलीजा को इस बारे में कोई शुबा नहीं था। बाद में उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। वो तब फॉरेन सर्विस में अपनी पहली पोस्टिंग पर जा रहा था और मैं लंदन में आर्किटेक्चर की मजीद तालीम के लिए। तुम उस वक्त ग्रेजुएशन कर रही थी। अलीजा को याद आया ये वो वक्त था जब उसे मुकम्मल तौर पर ये यकीन हो चुका था कि सिर्फ वही नहीं, उमर भी उससे मोहब्बत करता है। जब वो ये समझने लगी थी कि बहुत जल्दी वो उसे प्रपोज कर देगा। और वो उस वक्त क्या सोच रहा था? जुनैद को देखते हुए उसकी आंखों में नमी उमड़ने लगी। मेरा उस वक्त शादी का कोई इरादा नहीं था और उमर को भी इस बारे में कोई जल्दी नहीं थी। तुम अपनी तालीम ख़त्म करो, पाकिस्तान आओ, फिर तुमसे इस बारे में मज़ीद बात करूँगा। लेकिन ये बात तय है कि तुम्हारी शादी अलीज़ा के साथ ही होगी।
वो मुझसे कहता था। अगर वो मुझे अच्छी लगी तो, उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकी तो मैं हर बार उससे कहता और वो मुझे यकीन दिलाता। जब 20-30 साल तुम उसके साथ गुजार लोगे तो मेरे एहसानमंद होगे कि मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवा दी है। और अलीज़ा तुम्हें अच्छी ना लगे, शी इज़ अ जेम। मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस होने लगा कि मैं उमर को इनकार नहीं कर सकता। वो अपनी बात मनवा लिया करता था। कुछ सालों के बाद जब घर में मेरी शादी का जिक्र होने लगा तो उमर ने मुझे तुमसे मिलवाया, मगर ये कहकर कि मैं तुमको उमर से अपनी दोस्ती के बारे में ना बताऊं। मुझे तब भी कोई तजस्सुस नहीं हुआ। अगर इस पूरे दौरानिए में मुझे एक बार भी ये ख्याल आ जाता कि वो खुद तुम में इंटरेस्टेड है तो मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी करने का ना सोचता, या तुम मुझे बता देती तो तब भी मैं इस सारे मामले के बारे में उमर से बात करता। तुम्हारा इंकशाफ मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था और इस शौक से बाहर आने में मुझे कई साल लगेंगे। उमर मुझ में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने आपको बताया था वो सब मेरी खुशफहमी थी। अलीज़ा ने जैसे खुद कलामी की, जो भी था, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये सब कुछ बहुत तकलीफ देह था। जुनैद खामोश हो गया। अलीज़ा ने उसकी आंखों में पानी तैरते हुए देखा। मुझे अभी भी ये यकीन नहीं आता कि वो जिंदा नहीं है। जिंदगी में पहली बार 2 हफ्ते गुजर गए हैं और मैं उससे राब्ता नहीं कर सका, मिल नहीं सका, ना उसने मुझसे राब्ता किया। वरना हम लोग किसी न किसी तरह से एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे, चाहे मुल्क में होते या बैरूने मुल्क। मैंने उमर से बढ़कर खरा आदमी जिंदगी में नहीं देखा। हम दोनों के दरमियान बहुत से इख्तलाफात होते थे। वो बहुत तसल्लुत पसंद था, मैं ऐसा नहीं था, मगर इसके बावजूद हमारे दरमियान तमाम इख्तलाफात ख़त्म करने में पहल वही किया करता था। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। वो खुद झगड़ा शुरू करता, फिर यकदम मौजू बदल देता और मैं वाकई मौजू बदल देता। मुझे अब भी यही लग रहा है कि उसने ऐसा ही किया है। उसकी मौत से कुछ देर पहले उससे मेरी बात हुई थी। मैं तुम्हारे सिलसिले में उससे तफसीली बात करना चाहता था। वो दम साधे जुनैद को देखती रही। वो शायद जान गया था कि मैं तुम्हारे सिलसिले में उससे बात करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे रात को फ़ोन करेगा और वो रात अब कभी नहीं आएगी। वो हमेशा यही किया करता था। जो बात नहीं बताना चाहता था वो नहीं बताता था। जुनैद के लहजे में शिकस्त खोर्दगी थी। मैं अब किसी मामले की तहकीक नहीं करना चाहता, मैं बस इस एक रिश्ते को कायम रखना चाहता हूँ जो उसकी ख्वाहिश थी, मगर मैं सिर्फ उसकी ख्वाहिश के एहतराम में ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, किसी पछतावे के बगैर, किसी बोझ के बगैर। मैं चाहता हूँ हम तमाम पुरानी बातों को भुला दें, जख्मों को कुरेदने की कोशिश ना करें, जिंदगी को आज से शुरू करें। कुछ वक्त लगेगा मगर फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने चंद दिन पहले लाहौर में मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उमर की बात ना मानी हो। मैं किसी तरह से भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अलीज़ा ने उसे इस जुमले के बाद कुर्सी से उठते और लॉन से निकलते देखा। वो अपनी आंखों को मसलने लगी। वो और जुनैद एक ही शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, सिर्फ नौयत मुख्तलिफ थी। ताल्लुक की गहराई में कोई फ़र्क नहीं था। लॉन में छाए सुकूत को परिंदों की चहचहाहट तोड़ रही थी। बहुत दूर जुनैद गाड़ी को रिवर्स करते हुए ड्राइव वे से निकाल रहा था। उसने 1 साल के दौरान पहली बार जुनैद की बातों में बेरब्तगी महसूस की थी। वो बहुत हमवारी और रवानी से बात किया करता था। आज पहली बार उसकी गुफ्तगू में दोनों चीज़ें मफकूद थीं। वो खुद उससे कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी। आखिर जुनैद इब्राहिम से क्या बात की जा सकती थी? ताज़ियत की जाती, अफसोस किया जाता, कौन किससे करता? उमर की मौत ने दोनों को एक ही तरह मुतासिर किया था। उमर बिल्कुल गलत कहता था कि उसकी मौत से किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी मौत ने बहुत सी ज़िंदगियों को वक्ती तौर पर एबनॉर्मल कर दिया था। उनमें से एक ज़िंदगी उसकी थी, दूसरी जुनैद की, और तीसरी दर्द की एक लहर उसके अंदर से गुजरी, तीसरी जोडित की। उसने सोचा। पोरस में जलने वाली लाइट की रोशनी में उसने जोडित को जुनैद की गाड़ी से उतरते देखा। वो टी शर्ट और ट्राउजर्स में मलबूस थी। नानो उससे आगे थी और अब जोडित से मिल रही थी। जुनैद मुलाजिम की मदद से गाड़ी से उसका सामान उतरवा रहा था। अलीज़ा नानो से चंद कदम पीछे खड़ी उसे देखती रही। जिंदगी में पहली बार जोडित को देखकर
उसे कोई गुस्सा, कोई हसद महसूस नहीं हुआ। जोडिथ नानो से मिलने के बाद उसकी तरफ बढ़ रही थी, फिर वो उसके मुकाबले आकर खड़ी हो गई। अलीजा ने एक कदम आगे बढ़ाया और जोडिथ के कंधों पर हाथ रखते हुए उसके गाल को नरमी से चूम लिया। जोडिथ ने जवाबन उसे अपने साथ लिपटा लिया। दोनों के दरमियान किसी लफ्ज का तबादला नहीं हुआ। जोडिथ के अंदाज में बहुत गर्मजोशी थी, वालिहानापन था, बेख्तियारी थी, और क्या था वो जान नहीं सकी। मगर जब वो उससे अलग हुई तो उसने जोडिथ की आंखों में आंसू देखे। अलीजा ने उससे नजरें चुरा ली। उसका हाथ थामकर उसने समीना से उसको मुतारिफ कराया। ये मेरी मम्मी हैं जोडिथ। जोडिथ समीना से हाथ मिलाने लगी। जुनैद तब तक मुलाजिम के साथ जोडिथ का सामान अंदर भिजवा चुका था और खुद भी लाउंज में चला गया था। आप कपड़े चेंज कर लें, मैं खाना लगवाती हूँ, अलीजा ने जोडिथ के साथ अंदर जाते हुए कहा। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, फ्लाइट के दौरान खा चुकी हूँ, मैं इस वक्त सोना चाहती हूँ, जोडिथ ने कदरे माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। जैसे आप चाहें, अलीजा ने सर हिला दिया। उसे अंदाजा था कि उस वक्त वाकई बहुत देर हो चुकी थी। जुनैद लाउंज के दरमियान खड़ा था। जोडी, अब सुबह मुलाकात होगी, उसने जोडिथ से कहा और उसके बाद समीना के साथ बातें करता हुआ बाहर निकल गया। जोडिथ चंद मिनट नानो के साथ लाउंज में खड़ी बातें करती रही। फिर नानो ने अलीजा को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहा। अलीजा उसे लेकर उस कमरे में चली आई जहां उमर ठहरा करता था। इससे पहले जोडिथ कभी उमर के कमरे में नहीं ठहरी थी। उसे हमेशा फर्स्ट फ्लोर पर ठहराया जाता। इस बार अलीजा ने उसे उमर के कमरे में ठहराया था। वो अलीजा के साथ उस कमरे में दाखिल होने के बाद आगे नहीं बढ़ी, वहीं खड़ी रही। अलीजा ने आगे बढ़कर खिड़कियों के पर्दे बराबर कर दिए। फिर उसने पलट कर देखा। जोडिथ अब भी वहीं खड़ी थी, यूं जैसे वहां इस कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। अलीजा जानती थी वो किसके वजूद का एहसास करना चाहती थी। वो उमर का कमरा था और जोडिथ भी ये बात जानती थी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें, पानी मैंने रखवा दिया है, फ्रिज में कुछ खाने की चीज़ें भी हैं। फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। अलीजा उसके पास चली आई। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जोडिथ ने उसे देखते हुए कहा। ओके, फिर आराम करें, गुड नाइट। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक ही जोडिथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास रहो अलीजे, मैं आज रात यहाँ सो नहीं सकूंगी। वो उसका चेहरा देखे बगैर भी जानती थी कि जोडिथ की आवाज़ भर आ रही है। उसकी आंखें अब पानी से भर रही होंगी और उसी एक लम्हे से वो खौफजदा थी। उसे अलीजे उमर कहा करता था। जोडिथ के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भेजा। अब कोई भी उसे इस नाम से पुकार सकता था, बस वो एक शख्स नहीं पुकार सकता था जिसका नाम उमर जहांगीर था। उसने गर्दन मोड़कर जोडिथ की तरफ देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। जोडिथ जवाब में नहीं मुस्कुराई। वो बस आगे बढ़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसकी तकलीफ मेरी तकलीफ से बहुत ज्यादा है। इसने उस आदमी को खोया है जो उसका था, जिसे वो हासिल करने ही वाली थी। मैंने उस शख्स को खोया है जो कभी मेरा था ही नहीं, न कभी हो सकता था। जोडिथ की पुश्त पर अपने बाजू फैलाते हुए उसने गीली आंखों के साथ सोचा। मैं आपके पास ही हूँ, आप मुझसे बात कर सकती हैं, उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। उस रात वो दोनों जागती रहीं। अजब ताल्लुक था जो उसने जोडिथ के साथ महसूस किया था। जोडिथ उमर के बारे में बताती रही। वो पहली बार उमर से किस तरह मिली, कहाँ मिली, उनकी दोस्ती कैसे हुई, ये दोस्ती किस तरह गहरी होती गई। अलीजा चुपचाप उसका चेहरा देखती रही। अगर कोई सवाल वो जोडिथ से करना चाहती थी तो वो सिर्फ ये था, उमर को उससे मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई थी। और वो जानती थी वो उससे कभी ये सवाल नहीं कर सकती थी। वो अपने दिल को एक बार फिर किसी निश्तर से कटता हुआ महसूस नहीं करना चाहती थी। उसके पास जोडिथ को बताने के लिए कुछ नहीं था, कोई राज, कोई बात, कुछ भी नहीं। जोडिथ सब कुछ जानती थी। उमर के जहांगीर से ताल्लुकात कैसे थे, उमर के ज़ारा के साथ ताल्लुकात कैसे थे, उमर उन दोनों की अलहदगी से कितना डिस्टर्ब हुआ था, उसे क्या चीज़ें खुश करती थीं, क्या परेशान करती थी, सब कुछ, वो सब कुछ जानती थी। वो जोडिथ का चेहरा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। फजर की अजान के बाद वो उठकर खड़ी हो गई। मुझे उमर से सिर्फ एक शिकायत थी, उसने जोडिथ को कहते सुना। वो बेड पर पाँव ऊपर किए बैठी हुई थी। अलीजा जाते जाते रुक गई। जोडिथ की आंखें मतवरम थी। वो उस वक्त जैसे किसी ट्रांस में आई हुई थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा,
उसने मेरी परवाह की, उसने मेरी ख्वाहिशात का एहतराम किया, उसने मेरे साथ हर चीज़ शेयर की। बस उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की। अलीज़ा ने मुड़कर उसे देखा। जूडिथ उसे ही देख रही थी। मोहब्बत उसने तुमसे की। वो अब थके हुए अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी मंगनी वाली रात मैं इस्लामाबाद में थी। उसने मुझे रात 2 बजे फ़ोन किया। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। मुझे बहुत हैरानी हुई, कम अज़ कम उस रात उसे डिप्रेस नहीं होना चाहिए था। उस रात तुम्हारी और जुनैद की मंगनी थी। उसे बहुत खुश होना चाहिए था। मैंने उससे ये कह दिया। वो बहुत देर खामोश रहा, इतनी देर कि मुझे लगा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने आज उसको बहुत रुलाया है, बहुत ज़्यादा। मैंने आज उसको बहुत झिड़का है। वो मुझसे शादी करना चाहती है। वो जुनैद के साथ मंगनी तोड़ना चाहती है। वो कहती है कि वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैंने आज उसे बहुत झिड़का है, उसे बहुत रुलाया है, लेकिन मैं उसके पास से उठकर आ गया हूँ। तो मुझे लग रहा है मैं तो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। मुझे तो उससे बहुत मोहब्बत है। मैं कैसे उसे जुनैद के साथ देख सकूंगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने उस रात मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। मैं तो तब तक यही समझती रही थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मैं अगले दिन लाहौर चली आई। मैंने उससे कहा, तुम अलीज़ा की बात मान लो। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो उससे शादी कर लो। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो पिछली रात शराब पी रहा था। शायद शराब के नशे में उसने कोई फजूल बात की होगी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं जान गई थी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, या शायद वैसी मोहब्बत नहीं करता था जैसी तुमसे करता था। अलीज़ा चुपचाप उसे देखती रही, जर्द चेहरे के साथ। फिर उसने मुड़कर कमरे पर एक नज़र डाली। वो वहीं कहीं था। उसकी रॉकिंग चेयर उसी तरह झूलती महसूस हुई थी जैसे वो झुलाया करता था। हर चीज़ पर जैसे उसका लम्स मौजूद था। हर तरफ जैसे उसकी आवाज़ गूंज रही थी। वही धीमा ठहरा गहरा लहजा, वही पुरसुकून दिल के कहीं अंदर तक उतर जाने वाली आवाज़, अलीज़े। और फिर वही खिलखिलाते हुए बेख्तियार कह कहे। उस कमरे में सब कुछ जिंदा था। वहमा अक्स बन गया था और अक्स हकीकत बनकर उसके इर्द गिर्द फिरने लगा था। उसने मुड़कर ड्रेसिंग टेबल को देखा। जूडिथ शायद उससे कुछ कह रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने चली आई। एक साया उसके जहन में लहराया। ड्रेसिंग टेबल के आईने में यकदम कोई नजर आने लगा। उसे अपनी गर्दन पर, बालों पर एक फुहार सी पड़ती हुई महसूस हुई। मैं अलीज़ा को एटर्निटी दूंगा, फिर जो आए। उसने मुड़कर जूडिथ को देखा। उसके होंठ कपकपा रहे थे। वो कुछ देर जूडिथ को देखती रही, फिर लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। अलीज़े सिकंदर क्या थी, उमर जहांगीर क्या था? दो ऐसे नामुकम्मल वजूद जिनकी मोहब्बत एक दूसरे को मुकम्मल कर देती थी। लेकिन उमर जहांगीर हकीकत पसंद था। वो खुश रहता ना रहता उसे परवाह न थी, लेकिन मोहब्बत के जिस मकाम पर वो था वहाँ सिर्फ अलीज़ा की खुशी उसके लिए सब कुछ थी। उसकी अपनी खुशी अहमियत नहीं रखती थी, क्योंकि उमर जहांगीर ने मोहब्बत थोड़ी की थी। उसने तो इश्क किया था, क्योंकि मोहब्बत हुसूल मांगती है, लेकिन इश्क एक दूसरे के लिए फना हो जाना है।